body of Hitkani Prashikshan Mahila Mahavidyalaya, our governing body members and all Sabha members and in charge of Hitkani Sabha always support and encourage us. Our institution is run by Hitkani Sabha. Hitkani Sabha is historic educational non-profit organization. It was established in 1868, is one of the oldest society. It has completed 150 years, which runs 8 colleges, 18 schools, Hitkani Sabha, which gives free and supportive education to the needy and poor people in the society as well as all over India. Teacher play very important role in our society and helps to create a good citizen. To achieve this, B.Ed was introduced a major milestone of training and department was established in 1969 with the efforts of Kunwar Lakshmi Chand, former secretary of Hitkani Sabha. This institute was established as an independent training institute in 1981. Hitkani Prashikshan Mahila Mahavidyalaya strives to empower women through quality training and education. Every year, our college organizes national and international workshop, seminar, conferences to upgrade the knowledge of students. I am so grateful to see you all for taking time from here busy schedule to attend this international webinar. I wish you a fruitful day with interesting topics and exchange of knowledge so that we can improve the knowledge. We all are going through this troublesome phase of COVID-19, due to which we had to make the society many changes in our lifestyle for surviving in the society. In the same way, our teachers had to make and bring a lot of changes in teaching learning process in order to serve good quality of teaching, because the traditional teaching system now make teaching work complicated and difficult. During the period of COVID-19, we are responsible to follow the norm for our society, and same manner the teacher and student have responsibility to in our profession. At present situation, both student and teacher to be in their respective houses, and in this manner teacher had to provide education which is possible only and only through new technological train. This international webinar is being organized as a result of untiring efforts of the college. Our topic's aim is to teach and reach the learner with effectiveness and to take care of their work to the teaching work with advancement, so that the topic will surely succeed in its purpose. The following 5 subtopics have also been selected to achieve its aim. Importance of technology in education, engaging classroom, learning management system, digital assessment, role of constructivist approach in concept formation. This webinar will provide a new dimension in the teaching work of the teacher, and the learning process of the student will be improved and more meaningful. I hope this international webinar will definitely be a historic event. Thank you. Now I request to Jaya Madam, please come and give short introduction of our resource person, Professor Ashok Kumar Gupta.
Hello, good morning, all of you. Today, we hello, good morning. We are having first technical session with Professor Dr. Ashok Kumar Gupta, Vice President, Research Foundation of India, presently at Boston, USA. Sir has done his PhD in Mechanical Engineering from ISEC University, Bhopal in the year 2017. Professional experience of Sir is principal at Vikrant Institute of Technology and Management, Indore. Sir was director of Vidyasagar Institute of Technology. Sir worked as assistant professor in mechanical engineering department at Lakshmi Narayan College of Technology and Science. Sir was awarded by International Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Higher Education Research Award in 3rd International Conference at Bangkok. Professors Award for strengthening the pursuit of excellence in 7th International Conference at Bangkok. Award for Convener of the Year in 9th International Conference at LNCT's Indore. So many books published by Sir as Concept of Engineer Design, Dial-S Forming using third printer, Introduction to Spiral Bevel Gears. So many, more than 50 research papers published in national and international journals. Sir designed the project of spiral bevel gear designs and design and development of C-type industrial patterns, self-clamping, heavy-duty, torque range for graphite electrodes for MTech. Management learning from the processes of obtaining ISO. Now, Sir will provide a lecture on new trends for effective teaching learning in present scenario. Sir, we welcome you. Please, sir, you are audible? Yeah, thank you, madam. Thank you. Yes, sir. Please, yes. Continue, sir. Now, sir, you have to start your presentation. Yes. It is disabled now, presentation. Screen sharing is disabled. Please make it enable. Yes, sir, we are doing it. Hello. Yes, sir. Now, sir, you have to start. Are you hearing me, sir? Yes, but the host disabled participants. Sir. Screen sharing is not available here. Yes, sir, we are doing. Continue, sir. Screen sharing is disabled. I could not upload my presentation over here. Screen sharing. Sir, can I start your presentation from here? Can I start your presentation from here? Yes, you can. Okay, sir. Okay. Wait, sir. I'll start. The latest one which I have sent today. Good morning. Good morning to India. It is night over here in Boston, USA. It is a matter of great pleasure that we are conducting this international webinar. The topic is new trends for effective teaching learning in present scenario. I would like to thank Hitkarani Prashikshan Mahila Mahavidyalaya Jabalpur, India,
Yes, sir. Please continue. Yes, sir. Continue, sir. Yeah. प्रेजेंटेशन यहीं से शेयर करना है ना. नहीं, आपका चालू किया है क्या आपने? हेलो. You cannot. Okay. Yes, yes. We are sharing. Okay. I'll do. Even it is Yes. host disabled. शेयर करता हूँ. Madam, I have sent to you also that presentation. Yeah. Yes, sir. Please start from your end only. Hi. Yes, sir. I'd like to thank Dr. Ashwini Kumar Garg, Dr. Maharaj Singh, Dr. Umesh Sagar, Mr. Devesh Chenpuria sir, Mr. Abel T. Sunil, and the chief guest of the day, Professor Kapil Dev Mishra, VC of Rani Durgavati Vishwavidyalaya. I would also like to thank Shri Vishwa Mohan Ji, Secretary of Hitkarani Sabha, Srimati Sunayana Pateria, Chairperson Ma'am, Dr. Sulakshana Tripathi Ji, Convener and Principal Hitkarani Sabha, Dr. Tripti Srivastava, Vice Principal Ma'am, Srimati Nirupama Pathak Ma'am, and the all organizing committee, Mrs. Prachi Upadhyay, Mrs. Shobha Upadhyay, Mrs. Varsha Dubey, Mrs. Rashmi Shukla, Dr. Archana Sahu, Mrs. Nidhi Sabbu, and Shri Ram Ratan Yadav Ji, Srimati Jaya Samdekar, Srimati Shweta Namdev, Shri Lalit Sharma Ji, Dr. Nidhi Mathur, Srimati Shamli Bhattacharya. You all are welcome in this webinar. Yeah. Hello. Yeah. Sir, continue. The presentation you are available to Sir, see? unable to see, sir. I'm trying, sir. I'm trying. Actually, you have disabled the participant screen sharing. So, you try, please. I'll continue with. Hello. The presentation is related to new trends for effective teaching learning in present scenario. Now, what is trend? We can say the trend is a change or development towards something new or some different. Effective means successful in producing a desired or intended result. Now, we all are teachers. So, what is an effective teacher? That is, he is firmly convinced that he is responsible for student learning and consistently bend their efforts towards doing a better job every day. A teacher who is attempting to teach
without inspiring the people with a desire to learn is hammering on cold iron. जैसे कि लोहा जब गर्म होता है उसको शेप में ढाल सकते हैं, तो शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वो पहले अपने विद्यार्थी को इंस्पायर करें कुछ सीखने के लिए। अब कितने अलग अलग तरीके से टीचर हो सकते हैं। एक, द मेडिकल टीचर tells only, the good teacher explains only, the superior teacher demonstrates only, but a teacher कर देता हूँ। यार किस टाइप के इंसान हो आप, कैसे लैपटॉप पे काम नहीं करते? Hello. yes Hello. Hello, sir. yes ma'am, Sir, you can start your presentation. it is okay, yeah, it is now okay. Yes, sir. Yeah, thank you Yes. ma'am, हो गया. thanks a lot. Now this we have discussed. I request all the participants, please mute your audio video. This is the हितकारिणी प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय. These are the hello. Yes, sir. Yeah, he has muted everyone. Okay. Sir, sorry for interruption. No issue. It happens. So, new trends for effective teaching learning in present scenario. So, the trend means it is a change or development towards something new or different. The next is effective. Effective means successful in producing a desired or intended result. There is what we are thinking that we should do this thing, and the result we have get, then it is effective. Effective, we are when we are effective teachers, it is firmly convinced that they are responsible for student learning and consistently bend their efforts towards doing a better job every day. A teacher who is attempting to teach without inspiring the people with a desire to learn is hammering on cold iron. जैसा कि हम सब जानते हैं, लोहा गर्म हो तभी चोट करना चाहिए. अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को, और वो तैयार नहीं है मानसिक रूप से, तो हमारा जो पढ़ाने का मतलब है वो बेकार हो जाता है. तो फर्स्ट वी शुड इंस्पायर द पीपल. He must be able to learn, then only we can proceed further. तो कितने प्रकार के टीचर होते हैं, और द मेडिकल टीचर टेल्स, जो औसत से कम
स्तर का शिक्षक होता है वो सिर्फ कहता है। दूसरा जो गुड टीचर है वो एक्सप्लेन करता है, समझाता है। अगला है सुपीरियर टीचर, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, करके दिखाता है। और जो ग्रेट टीचर है वो इंस्पायर करता है। आप किसी को मछली पकड़ के दे देंगे तो उसका एक दिन का काम होगा, लेकिन अगर आप मछली पकड़ना सिखा देंगे तो जिंदगी भर कमा खाएगा। तो ये टीचर का काम होता है। और टीचर होता क्या है, टीचिंग शब्द कहाँ से आया, और जैसे संस्कृत में धातु शब्द, धातु होती है किसी भी चीज के पीछे, ऐसे ही टीचिंग जो है वो टीच से बना है। टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट एंड टू ट्रेन, ये सिनोनिम्स हैं, एक जैसे इनके मीनिंग है। मीन टू कॉज टू गेन नॉलेज और स्किल। हेलो हेलो Yes, sir. Please continue. यस यस यस। टीच मीन्स इंस्ट्रक्ट, ट्रेन, टू कॉज टू गेन नॉलेज और स्किल। एक होता है नॉलेज और एक होता है स्किल। ज्ञान और कौशल दो चीजें हैं। दोनों में से कोई एक चीज या दोनों चीजें शिक्षक का काम होता है कि वो दे। जैसे एक वेल्डर है, अगर उसको वेल्डिंग करने का आता है, वेल्डिंग कर सकता है, तो ही इज ए स्किल्ड वन। और एक इंजीनियर है, उसको वेल्डिंग के बारे में नॉलेज है, लेकिन वो वेल्डिंग नहीं कर सकता, तो उसको नॉलेज है, स्किल नहीं है। लेकिन एक डिप्लोमा होल्डर होता है जिसको नॉलेज भी होता है वेल्डिंग कैसे की जाती है, और स्किल भी होता है, वेल्डिंग करके दिखा भी देता है। तो दे बोथ आर रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन वी रिक्वायर नॉलेज एंड स्किल बोथ। तो जो टीचर, इंस्ट्रक्टर इनको देता है वो टीच करता है। द वर्ड टीच कैन बी यूज्ड of any method of passing on information or skill so that others may learn. It may be there are so many ways जिनके कारण एक टीचर स्टूडेंट को सिखा सकता है, बता सकता है। तो इसी से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है टीचिंग। टीच से जुड़ा हुआ टीचिंग। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपल्स नीड। सबसे पहले हमें उसकी आवश्यकता क्या है। अगर वो शाकाहारी है तो हम उसको मछली पकड़ना नहीं सिखा सकते, हमें उसे खेती करना सिखाना होगा। तो उसकी नीड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एंड फीलिंग्स क्या है उसकी, एंड मेकिंग स्पेसिफिक इंटरवेंशंस टू हेल्प देम लर्न पर्टिकुलर थिंग, ये टीचर का काम होता है। और जो एजुकेशन में टीचिंग का मतलब है कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड विद इन अ डिसिप्लिन and more generally the provision of stimulus to the psychological and intellectual growth of a person by another person. उसके बुद्धि का विकास करना, उसके मन का विकास करना, उसके मनोभाव का विकास करना, यह सब शिक्षक का काम होता है। इसमें दो चीजें हैं। टीचिंग इज नॉट ए डिलीवरी सिस्टम। आपने किराने की दुकान पे गए और सामान की लिस्ट दे दी और उसने उठा के आपको दे दिया, तो इट इज डिलीवरी, इट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। लेकिन टीचर का काम ये नहीं होता है। इट इज जस्ट, इट इज एन आर्ट। जैसा आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत रास्ता है जिसके ऊपर टीचर चलकर अपने छात्रों को संबोधित करता है। अक्सर लोग जो बड़े टीचर होते हैं वो कहते हैं कि आई एम नॉट ए टीचर बट एन अवेकनर, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि मैं सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहा हूँ तुमको, मैं तुम्हें जागृत करने आया हूँ। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, और जिसकी श्रद्धा होती है वो ज्ञान प्राप्त करता है।
ज्ञान हमें जागृत करता है। अब द आर्ट ऑफ टीचिंग, इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्ट का टी को फोकस किया, हार्ट ऑफ टीचिंग, मतलब ऐसा टीचिंग जो दिल से निकले, उसको हार्ट ऑफ टीचिंग बोलेंगे। ये आप एक फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें घर के अंदर के बर्तनों को इकट्ठा किया हुआ है और एक खूबसूरत शेप दिया। ये टीचर का काम है, एक छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी वस्तुओं को एक शेप देना, उनको अपने शिष्य के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए कुछ मायने रखें ऐसी चीज बताना। पर्पज ऑफ टीचिंग एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, एक शिक्षक में क्या क्या चीजें होना चाहिए। A teacher's role is to make informed and intelligent decision about practice to achieve various outcomes with and for students in their classes. A teacher's role is to make judgments about how best to help their students learn in the environment in which they teach. कौन कौन से स्किल्स होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट टीच समथिंग टू समबडी। जैसे कि शुरू में हम लोगों को प्रॉब्लम आई कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो टीचर का भी मन नहीं लगेगा और स्टूडेंट का भी मन नहीं लगेगा। अगर कहीं डिस्टरबेंस है तो उस डिस्टरबेंस को दूर करना, और जिस लैंग्वेज में अगर मैं आपको थ्रू आउट अमेरिकन इंग्लिश में बोलूंगा तो हो सकता है समझ में नहीं आए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको बताऊं, क्योंकि टीचर का ये काम है कि वो कम्युनिकेशन उस लैंग्वेज में करे जिसमें उसके जो स्टूडेंट है, उसके श्रोता हैं, उसके ऑडियंस है, वो समझ सकें। तो a huge part of teaching is communicating information. Every time, every teacher is communicating something. So the communication is also a good skill that possesses the teacher. Next है patience. We should have patience. People learn at all different rates. एक बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है, एक को टाइम लगेगा। तो आपको पेशेंस होना चाहिए कि आखिरी जो कमजोर से कमजोर बच्चा है, जो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा है, वो भी आपकी बात को उतने ही गंभीरता से समझे जिस तरीके से जो फ्रंट बेंच पे बैठे हैं वो बच्चे समझते हैं। क्रिएटिविटी आना चाहिए उसमें, जैसे आपने देखा पहले वाली स्लाइड में कि ये क्रिएटिविटी है, बर्तनों को एक तरीके से जमाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। इंथुजियाज्म होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं वो उसमें भरोसा हो बच्चे में कि सर ने बोला है मतलब ये पत्थर की लकीर है। और वो कब होता है? एक दिन में नहीं आएगा, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नाउ टीचिंग आपने किया, लेकिन लर्निंग क्या होता है? लर्निंग मीन्स द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। हमने, टीचर ने नॉलेज इम्पार्ट किया, लेकिन उसको कोई रिसीव करने वाला तो हो। दी एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल बाय स्टडिंग। ये किस तरीके से होता है? स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग, बीइंग टॉट और एक्सपीरियंसिंग समथिंग। या तो हम पढ़ के उसको प्रयोग करके, जैसे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, या आपको कोई पढ़ा दे, या आपने उसका अनुभव किया, उस काम को करके देखा है, तो आप नॉलेज ले सकते हैं। द एक्टिविटी ऑफ समवन हु लर्न्स, ये लर्निंग की है। नॉलेज और स्किल गेन फ्रॉम लर्निंग, ये आजकल आपने देखा है कि हर जगह पे आउटकम बेस्ड एजुकेशन होता है। आपने जो पढ़ाया है उसका क्या इफेक्ट रहा, क्या पढ़ा है, क्या समझा है आपके छात्रों ने, वो आउटकम क्या रहा उसका। सिर्फ इससे काम नहीं होगा कि आपने पढ़ा दिया। इट इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक, इट इज व्हाट वी नो ऑलरेडी दैट ऑफन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम लर्निंग। कई बार हम जिस चीज को जानते हैं वही हमारे लिए रोड़ा बन जाती है। अगर हमने गलती से गलत कैलकुलेशन सीख लिया या गलत तरीके से पढ़ाना सीख लिया, तो वो हम फिर उसको
हमारी लर्निंग में आगे नहीं ला सकते हैं। आप एक प्लेन स्लेट है, प्लेन बोर्ड है, उसके आप ऊपर आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर पहले से कुछ लिखा है तो पहले आप उसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद अपना नया कुछ लिख सकते हैं। तो हमारे दिमाग में भी ऐसा होता है कि हम पहले से कोई चीज जानते हैं तो उस जानी हुई चीज को मिटाना और फिर उसके ऊपर नई चीज लिखना, यह बहुत कठिन काम होता है। The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. आपका कोई धन चुरा सकता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, लेकिन वंस यू हैव एक्वायर्ड द नॉलेज, आपने जो सीख लिया है, जैसे आपने ड्राइविंग सीख ली है तो आप 2 साल बाद भी आप ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कार है तो कोई कार को चुरा सकता है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप 2 साल बाद भी स्विमिंग कर सकते हैं। हो सकता है उस स्पीड से नहीं कर पाए, बट यू नो द बेसिक थिंग। द मोर आई रीड, द मोर आई एक्वायर, द मोर सर्टेन आई एम दैट आई नो नथिंग। जितना हम लोग पढ़ते जाते हैं, हमको अपने अज्ञानता का एहसास होता जाता है। हम जैसे जैसे पढ़ते हैं, हमको पता लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानना है अभी। Do not confine your children to your own learning, for they were born in another time. आप जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें एक में सेक्रेटरी एक होता है, हमारे जमाने में ऐसा होता था। तो वो बच्चे, उसकी वाइफ भी जैसे ही वो बोलता है कि हमारे जमाने में, तो वो सब भाग जाते हैं। तो एक टीचर को भी ये है कि डू नॉट कन्फाइन योर चिल्ड्रन टू योर ओन लर्निंग, फॉर दे वर बोर्न इन अनदर टाइम। जनरेशन गैप है। आप जो आपने जिस तरीके से पढ़ा है, आज की जनरेशन, अभी हम देख रहे हैं, पहले छड़ी पड़े छम छम विद्याए गम गम हुआ करता था। आज हम ई लर्निंग कर रहे हैं। हम लोग, मैं अमेरिका में 12,000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, आप लोग जबलपुर में बैठे हैं, एक कोई राजस्थान में बैठा है, कोई एमपी में है, कोई गुजरात से है, ऐसे अलग अलग स्टेट से हैं। लेकिन ये पुराने जमाने में अगर आप बोलते कि नहीं हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, पेड़ के नीचे पढ़ेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये चीज हमको समझना होगी। लर्निंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग, लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लर्नर। मतलब जैसा हमने बताया पहले कि ये कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और आपको मिल गया। तो लर्निंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग, कुछ निकल, ये प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लर्नर, जो आप करते हैं, आप जो कर रहे हैं उसी से सीखते जा रहे हैं। तो ये हमेशा अपने को ध्यान रखना होगा। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? मीनिंग ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग नाउ। दिस इज द प्रेजेंट। रियल लाइफ scenario is existing or occurring in reality, drawn from or drawing on actual event or situation, real life problem, real life drama, etc. एक फिल कॉलिंस है, उन्होंने कहा है कि इन लर्निंग यू विल टीच एंड इन टीचिंग यू विल लर्न। एक अच्छा शिक्षक वही है जो हमेशा, और एक अच्छा विद्यार्थी वह है जो अपना शिक्षक स्वयं बन जाए। हमारे पास 2 उदाहरण है, एकलव्य और अर्जुन। द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन थे, अर्जुन और द्रोणाचार्य एक दूसरे के सामने थे। एकलव्य के सामने द्रोणाचार्य नहीं थे, तो उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाई, लेकिन दोनों का वे ऑफ लर्निंग इज डिफरेंट। एक का है पुल सिस्टम, एक का है पुश सिस्टम। पुश सिस्टम मीन्स
द्रोणाचार्य जी कुछ दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ये सीखो, ये करो, ऐसा करो, लेकिन एकलव्य पुल कर रहा है। उसने मिट्टी का भगवान बना लिया, मिट्टी का गुरु बना लिया और उससे शिक्षा ले रहा है। तो ऐसा होता है हमेशा अपने लाइफ में कि लर्निंग यू विल टीच, जब आप तब आप सीखेंगे, और जब आप सीखते हैं तो पढ़ाते भी हैं। कई बार हम लोग जैसे क्लास लेते हैं तो पहली बार तो हम पढ़ते हैं, फिर उसके नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने के बाद जब एक्चुअल क्लास में जाते हैं तो हमको पता लगता है जो विद्यार्थी है हमारा वो हमें कई चीजें सिखाता है कि सर या मैडम ये चीज कैसे होगी, फिर अपने दिमाग में आता है और स्पॉन्टेनियस हम रिएक्ट करते हैं, हमारे में ये चीज बैठी रहती है और हम तुरंत उसका जवाब देते हैं। बाद में हम सोचते हैं कि अरे यार ये मैंने कैसे बोला। तो ये जो विद्यार्थी है वो हमें सिखाते हैं कि कैसे पढ़ाना है और कैसे टीचर जितना स्टूडेंट बनेगा वो पढ़ते जाएगा। जैसे आपने देखा 3 इडियट पिक्चर में उसने बताया था कि ये पढ़ना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप your student can just not on the same day or the same day। हर विद्यार्थी उसी दिन सब कुछ सीख लेगा ये संभव नहीं है। और जैसे एक विद्यार्थी सीख सकता है जिस तरीके से, उस तरीके से दूसरा विद्यार्थी भी सीख लेगा ये भी आवश्यक नहीं। हर स्टूडेंट अपने आप में एक यूनिक होता है और उस स्टूडेंट को हमें ध्यान रखना होगा। ध्यान रखें कि मेरे स्टूडेंट को किस तरीके से समझ में आएगा। जैसे अभी जो पेरेंट टीचर मीट्स होते हैं तो एक महिला पेरेंट टीचर मीट्स में जाती है और बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत नाजुक है, उसको अगर आपको कुछ सिखाना है तो आप पड़ोस वाले बच्चे को 2 थप्पड़े मार देना तो मेरा बच्चा सहम जाएगा और सीख जाएगा। तो ये उसका तरीका है, ये नेगेटिव तरीका है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस बच्चे का वो समझना है कि वो क्या चाहता है, कैसे सीख पाएगा और उसको कैसे कर सकता है। ये आपकी वेबसाइट है, उस पर लिखा है टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। ये बहुत बड़ी बात आपने लिखी है कि टीचर, हम लोग का जब प्राइमरी में थे, स्कूल में थे, हम को जब हमारे गुरु मिलते हैं तब हम उनको आज भी चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन हम कॉलेज के शिक्षकों को उतना आदर नहीं दे पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो पुराने टीचर थे वो अपनी इम्पोर्टेंट बच्चों को बताते थे, लेकिन आज के शिक्षक, उनका वो तरीका नहीं है जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का होता है। Teachers who decide the shape of a student's life to be adequately equipped with resources that will make the teacher a perfect role model to the student। तो रोल मॉडल होना चाहिए। हमारे कई स्टूडेंट है अभी भी और वो हमसे सलाह लेते रहते हैं। तो एक टीचर के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई विद्यार्थी आपको 10 साल बाद भी याद करता है, अरे सर आपने क्लास में वो चीज बताई थी और मुझे अभी तक याद है, तो वो टीचर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। पैसे वैसे और अवार्ड वगैरह ये सब चीजें हैं, लेकिन जो टीचर है उसको अगर कोई उसका विद्यार्थी याद करता है और गर्व से कहता है कि मैं उनका शिष्य हूँ, तो टीचर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। To achieve this, Bachelor of Education or B.Ed was introduced, which will teach about teaching and the various aspects associated with teaching। तो हम लोग हितकारिणी में बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब जो बच्चों को पढ़ाएंगे उन टीचर को हम पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पर हितकारिणी में ग्रांड टीचर, जैसे पोते पोती
कि मदर फादर के ऊपर, फिर उनके। तो हमारे जो टीचर है वो किसी के टीचर हैं, ये मान के चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि टीचर के टीचर को पढ़ाना मतलब और बड़ी बात होती है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है। अब अगर हम ये देखें कि फ्लो कैसे होता है, स्टूडेंट कैसे सीखता है और टीचर कैसे सिखाता है। स्टूडेंट क्या करता है, पहले ऑब्जर्व करता है, लिसन करता है और रिस्पॉन्ड करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा कैसे सीखता है। अभी हमारे यहाँ पे छोटी नातिन है, वो 3 महीने की है, वो समझने लगी, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले महीने से। और यहाँ अमेरिका में सारे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, अपने इंडिया में अंग्रेजी सीखना रहती है, सीखना पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे ऑब्जर्व करके, लिसन करके उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर कुछ अटेम्प्ट करते हैं फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अटेम्प्ट विद सपोर्ट, आपने देखा होगा साइकिल हमने चलाना कैसे सीखा, हमारे किसी अंकल ने, भैया ने, बड़े भैया ने पीछे सीट पकड़ी और हमको बोला अच्छा ठीक है मैं पकड़ के रखता हूँ, फिर धीरे धीरे उन्होंने छोड़ना शुरू किया और हमको पता भी नहीं लगा कि कब उन्होंने छोड़ दिया। तो ये अटेम्प्ट विद सपोर्ट है। प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्व, ये भी एक तरीका होता है जिससे कि एक विद्यार्थी सीखता है। टीचर का क्या काम होता है, ऑब्जर्व स्टूडेंट एज दे प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट, उनको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के समय ऑब्जर्व करना और देखना कि कैसे काम कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। फिर सपोर्ट स्टूडेंट एज द प्रैक्टिस इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बना के उनके लिए हमको सपोर्ट करना होता है। फिर डिमॉन्स्ट्रेट हाउ द स्ट्रेटेजी वर्क इन ए शेयर्ड सेटिंग, बहुत से बच्चे ग्रुप में स्टडी करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इंट्रोड्यूस एंड प्रोवाइड मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड टेक्स्ट, ये सबसे लास्ट में आता है। ये पिरामिड है अलग अलग टाइप का, इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने, इनके जो लोग हैं उन्होंने बताया है। ये एक फोटो मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। अब इसमें एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि उसमें जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, उसने कुछ पूछा है तो सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों को सारी चीज समझ में आई है। ऐसे हमारे स्टूडेंट होना चाहिए कि हमने जो बताया है वो उनको अधिकतर को समझ में आ जाए, ये हमारी कोशिश रहे। ये इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग का एक मॉडल है जिसमें मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशंस होते हैं, पेडागोजी है, प्रैक्टिस है, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स है एंड कोलैबोरेशन। ये अलग अलग है, बहुत सारे मॉडल हैं, इसमें आप देख सकते हैं। I keep 6 honest serving, ये मेरे लिए है, क्योंकि टीचर वो है जो अपनी कहानी खुद बताए कि मैंने कैसे सीखा, मैं टीचर कैसे बना और मैं अपने बच्चों को क्या बोलता हूँ, क्या है उसका। 6 गुरु हैं, they taught me all I know till now, but I am not perfect till now, I am learning, I am a student till now. What, why, when, how, where and who. अर्जुन ने प्रश्न किया तो उसका जवाब मिला। आपके स्टूडेंट अगर आप उनको प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। आपका ये उद्देश्य है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को प्रश्न करने के लिए प्रेरित करें, और जितना वो ज्यादा प्रश्न करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। इसलिए हमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, इस सारी चीजों का पता होना चाहिए। कहा भी गया है कि इट इज मिरेकल दैट क्यूरियोसिटी सर्वाइव्स फॉर्मल एजुकेशन। जब तक आप में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप कुछ सीख नहीं पाए।
क्यूरियोसिटी आना चाहिए। ये कैसे होता है? लोग कहते हैं कि ये ऐसा होता है, तो अपने को प्रश्न ये करना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं होता? पेड़ से सेब गिरते हुए सबने देखा, लेकिन न्यूटन ने उसको बोला कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? एक क्यूरियोसिटी थी उसमें। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि पक्षी उड़ते हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता? एक क्यूरियोसिटी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल गाइडेड बनाई। मिसाइल गाइडेड वो होती है जो जैसे आपने लक्ष्य पे छोड़ा, वो गाइड करते हुए वो मिसाइल उस जगह पे जाएगी। अगर आपका टारगेट हिल गया, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होगा, तो भी वो अपनी जो गाइडेड मिसाइल है वो अपना रूट चेंज कर लेगी। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने कहाँ से सीखा, आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? हम कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर हम मंदिर जाएंगे तो हमारे दिमाग में आइडिया आएगा। अगर हम इंटरनेशनल वेबिनार करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया आया। सुलक्षणा मैडम के दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे इंटरनेशनल वेबिनार करना है। उसके लिए उन्होंने फिर रास्ते निकाले कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, कैसे करेंगे, कौन रिसोर्स पर्सन है, ये सब तरीके। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए एक आइडिया की जरूरत है। इट इज अ मिरेकल दैट क्यूरियोसिटी सर्वाइव्स फॉर्मल एजुकेशन। तो डॉक्टर एपीजे के दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? जब उन्होंने बताया कि मैंने रामायण से लिया है इस साइड, तो लोगों ने पूछा रामायण में गाइडेड मिसाइल कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में सीता माता के पैरों में चोट मारता है, चोंच उसने लगाई और राम ने एक बिना फल वाला सीख का बाण उसको चला दिया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जितने भी देवी देवता थे सबके पास पहुंचता गया, तो जहां जहां जाता वो सिक्का बाण उसका पीछा करता। तो मुझे ये आइडिया है कि जब उस समय ऐसा हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय हुई। दूरदर्शन, संजय का आविष्कार था, ये चीजें उस समय हुई। खुलजा सिमसिम, अभी हम आवाज से खोल देते हैं दरवाजा, ये सब चीजें। तो क्यूरियोसिटी होना चाहिए। अभी आपने देखा जर्मन में बहुत सारे लोग वेद पे, पुराण पे और इस पे काम कर रहे हैं, तो उनको मिल रहा है कुछ ना कुछ। क्यूरियोसिटी आना चाहिए। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन पर्पस इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विथ एन ओपन वन। दोनों में फर्क है, खाली दिमाग और खुला दिमाग। हम क्या चाहते हैं? खाली दिमाग चाहते हैं या खुला दिमाग चाहते हैं? जैसे पैराशूट और दिमाग कब काम करते हैं? जब दोनों खुले हों। अगर पैराशूट खुला नहीं तो काम नहीं करेगा, आप धड़ाम से जमीन पर पहुंच जाएंगे। उसी तरह अगर दिमाग खुला नहीं है तो काम नहीं करेगा। यू शुड बी रेडी टू रिसीव समथिंग। आप ओपन होना चाहिए कि हाँ चलिए, आई एम रेडी टू लर्न। एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, and whether at 20 or 80, anyone who keeps learning stays young. जैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने एक 85 साल के व्यक्ति को शिप में देखा, जहाज में देखा, और वो पढ़ाई कर रहा था। उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। 85 साल की उम्र में बंदा जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था, अंग्रेज था, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड। जो सीखना बंद कर देता है वो बूढ़ा हो गया, और जो सीखना चालू रखता है वो यंग है। ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो हम भले ही शिक्षक हो, पीएचडी कर लिया हो या कुछ भी कर लिया हो, बहुत सारी डिग्रियां हमने ली हो, लेकिन सीखना कभी बंद नहीं करना। चाकू पे धार लगती रहना चाहिए। अगर चाकू पे धार नहीं लगी तो उस पर जंग लग जाएगी और चाकू का जो काम है वो नहीं कर पाए। If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. इसको हिंदी में बता देते हैं कि अगर 1 साल के लिए आपको करना है तो चावल बो दीजिए। अगर
10 साल के लिए करना है तो पेड़ लगा दीजिए, ट्री लगा दीजिए, आम का पेड़ लगा दीजिए या जामुन का पेड़, जो भी। लेकिन अगर आपको जिंदगी भर के लिए प्लानिंग करना है तो एजुकेट करो, लोगों को पढ़ाइए। पढ़ने की और पढ़ाने की कोई उम्र नहीं थी। आप एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति से रिटायर हुए, उसके बाद भी क्लास ले रहे थे। मैं अंतिम समय में भी वो क्लास लेने जा रहे थे। तो पढ़ने की भी कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। एक गुड टीचर में क्या क्वालिटी होना चाहिए? A good teacher should not be too long as to exceed the teenage attention span. 30 से 45 मिनट काफी होता है, मैक्सिमम 50 मिनट, लेकिन उसमें फिर क्वेश्चन आंसर आपको देना है। A good teacher should address a single theme. एक बार में एक ही थीम पे काम करें। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है और गेहूं की फसल कैसे बोएं और ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते। A good teacher टर्म्स और केयरफुली एक्सप्लेन, वो जो जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको केयरफुली एक्सप्लेन करता है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। फेमिलियर एग्जांपल्स एंड एनालॉगी आर गिवन, जिससे बच्चों को उदाहरण से समझा जा सके, जिसके बारे में वो जानता हो। ए गुड टीचर एस्टैब्लिशेस फ्लुएंसी इन टेक्निकल कंटेंट। टीचर यूजेस इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल देता है, उदाहरण से जल्दी समझ में आता है बच्चों को। ए गुड टीचर बिल्ड्स और एग्जिस्टिंग नॉलेज, पहले उसका नॉलेज क्या है उससे आगे बढ़ता है। अगर आप ऐसे यहाँ हैं, बच्चा यहाँ है और आप यहाँ हैं, तो आप उसके उतर के आइए, नीचे उतर के आइए, फिर आप उसको ऊपर ले जाइए। लेकिन अगर आप ऊपर से जाएंगे तो जैसे बोलते हैं ना, बच्चे हवा से निकल गई, ऊपर से, सिर के ऊपर से निकल, ऐसा नहीं। ए गुड टीचर बिल्ड्स एन एग्जिस्टिंग नॉलेज। ए गुड टीचर एम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ अप्रोच। किसी को किससे समझ में आता है? किसी को फिल्म की स्टोरी से समझ में आता है, किसी को गाने से समझ में आ जाता है, किसी को मार खा के समझ में आता है, किसी को डंडे से समझ में आता है। तो हर एक जो स्टूडेंट है वो उसका तरीका अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे किस तरह से सीखेंगे। चाहे तो आप ग्रुप बना दें। एक बहुत अच्छी चीज है संस्कृत में, संस्कृत वर्ड में टीचर बेस्ड ऑन देयर यूनिक एबिलिटीज। A teacher who gives you information is called अध्यापक। अध्यापक आपको सिर्फ सूचना देता है। The one who imparts knowledge combined with information is called उपाध्याय, उसको उपाध्याय बोलते हैं। The one who imparts skill is called आचार्य। The one who is able to give a deep insight into a subject is called पंडित। The one who has a visionary view on a subject and teaches you to think in that manner is called drishta. And the last one, the one who is able to awaken wisdom in you, leading you from darkness to light, is called guru. स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र तो अपने गुरु के पास गए थे, गुरु ने पूछा कौन हो, तो उन्होंने जवाब दिया यही जानने तो मैं आया हूं। तो गुरु जी ने कहा आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम सही जगह पे आए हो। तो हम क्या हैं? हम सिर्फ टीचर हैं, अध्यापक हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, पंडित हैं, दृष्टा हैं या गुरु हैं। तो हम क्या बन सकते हैं या हम अभी किस स्टेज पे हैं? तो गुरु के लिए भी ये सारी चीजें हम मायने रखती है। संस्कृत इज परहैप्स द ओनली लैंग्वेज that has such a refined vocabulary to distinguish the different kinds of teachers. आपने चाणक्य में देखा होगा, वहां आचार्य शब्द का ज्यादा उपयोग किया गया क्योंकि वो स्किल्स इम्पार्ट कर रहे थे, स्किल्स सिखा रहे थे। उसमें पंडित एक आध दो कोई होंगे, बाकी दृष्टा और गुरु कोई नहीं थे। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रैक्टिस इन एजुकेशन, कुछ सिद्धांत हमें ध्यान रखना पड़ेगा। Encourage contact between students and faculty. ये संबंध जितने मधुर होंगे उतनी अच्छी शिक्षा होगी। आपके वेबसाइट पे मैंने देखा है कि आपने एलुमनाई का एक पोर्टल बना रखा है। आपके जो जितने छात्र पास आउट हुए हैं उनका सबका लिस्ट बनी हुई है उसमें। ये बहुत अच्छी चीज है।
क्योंकि आप कितने एडवर्टीजमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आपके यहाँ से निकला हुआ छात्र आपके कॉलेज के ऊपर गर्व नहीं करेगा, तब तक वो दूसरे छात्र को वहां पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता। तो सबसे बड़े एम्बेसडर आपके एल्यूमनाई हैं, और हम आपके एल्यूमनाई आपके काफी अच्छे अच्छे पोस्ट पे, वो भी देखा हमने आपके बहुत रिनोड कंडीशन पे हैं। डेवलप रेसिप्रोकेसी एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। आप जो दे रहे हैं वो स्टूडेंट आपको दे रहा है कि नहीं, रेसिप्रोकेसी है कि नहीं, कोऑपरेशन है कि नहीं। इंकरेज एक्टिव लर्निंग। फिर गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक। आपसे कुछ उसने पूछा और आपने बताया कि ठीक है मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। जैसे एक स्टूडेंट था, उसने पूछा सर नटूरे की स्पेलिंग क्या है, तो गुरुजी ने पूरा डिक्शनरी देख ली, बोले नहीं पता नहीं मुझे यार, मैं कल बताऊंगा। फिर उसने पूछा सर नटूरे की स्पेलिंग क्या है, तो उसको समझ में नहीं आया। बोले यार किसी इंग्लिश वाले से पूछा उसने, जो जिसने अंग्रेजी में पीएचडी की। उसने बोला नटूरे शब्द कुछ है ही नहीं अंग्रेजी। तो वो परेशान हो गए। तो जैसे वो छात्र दिखता वो घबरा जाते, अरे बोले ये फिर आ गया नटूरे का पूछा। तो उसने कहा अच्छा तो मैं काम करूँ, मुझे लिख के दो, मैं कल बता दूंगा। तो उसने नटूरे को लिखा NATURE, दैट वाज नेचर। NATURE, नेचर को नटूरे बोल रहा था। तो ये तो सब पीटना शुरू किया, बोले सर मेरा फुटूरे खराब हो जाएगा। फ्यूचर को बोल रहा था फुटूरे। तो आपका स्टूडेंट क्या है और आप कहाँ हैं, वो सब चीजें आपको बताना चाहिए। एम्फेसाइज टाइम ऑन टास्क। कौन सा काम कब होगा, कितने समय में होगा, उसकी एक समय सीमा होना चाहिए। आप काम को करते जाएंगे तो बहुत अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन कब होगा, कितने दिन बाद होगा, वो भी एक होना चाहिए। आपका जैसे 2 साल का कोर्स है, अगर आप हर सेमेस्टर या हर साल में आप 2-2 साल लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक टाइम की लिमिट होनी चाहिए। कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशन। आपके छात्रों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। रेस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट्स एंड वेज ऑफ लर्निंग। आप कोई एक ही चीज से यही तरीका है बहुत अच्छा ऐसा करना, ये भी तरीका हो सकता है, मेरा भी एक तरीका है, तुम बताओ तुम्हारे को कैसे समझना, फिर उसके ऊपर बात करें। अभी जो मेन थीम है, अपनी हाइलाइट्स हैं जो अपने इसमें ब्रोचर में है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, engaging classroom, learning management system, digital assessment, role of constructive approach in concept formation. मैडम 10 मिनट का और Yes, टाइम। continue. You summarize, sir, your topic. How much time left for me? Only 10 minutes. Only 10 minutes. Okay. So I'll go fast. What is importance of technology? Technology automates the most complex process, be it communication, education, medicine, or other. Using technology in classroom allows you to experiment more in pedagogy and get instant feedback. तो टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग करें। फिर engaging classroom, check out some ways that you can create the perfect environment that encourages students to strive for excellence and embrace their uniqueness. Create a family atmosphere, keep them guessing, give them choice, be consistent, celebrate success, positive feedback. Not all are created equal. Design your space for learning. Learning management system is a software application for the administration, documentation, tracking, reporting, automation, and data. Now, digital assessment is the presentation of evidence for judging student achievement managed through the medium of computer technology. इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सभी आ जाते हैं। फिर constructivity is a theory used to explain how people know what they know. आप क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं और कितना जानते हैं। वो एक जगलरी है कि जो जानते हैं कि जानते हैं वो जानते हैं, जो जानते हैं कि नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते कि जानते हैं और जानते हैं, और जो नहीं जानते कि नहीं जानते हैं और नहीं जानते हैं। ऐसे तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि पीपल
नो व्हाट द नो, कई बार अपने को पता, अरे तो मुझे मालूम था, आपने बताया, ऐसे नहीं पूछा। तो ये बेसिक आइडिया इज दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग at the heart of learning, thinking, development. This implies instructions, and constructivism is an approach to learning that holds that people actively construct or make their own knowledge, and that reality is determined by the experiences of the learner. अभी कोविड-19 में थोड़ा सा क्या चेंज होने वाला है, कोरोना वायरस की वजह से disruptive can give educators time to think the sector. Technology has stepped into the our world where knowledge is mouse click away. The role of educator must change too. आपके यहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस लग रही होगी, तो ये सारी चीजें, इसकी वजह से ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्यूचर है ई लर्निंग का होने वाला है, पूरा ई लर्निंग करेंगे हम, और वेल चेंज और वर्ल्ड ग्लोबल आउटलुक हो जाएगा आपका। एजुकेटिंग क्रिटिसिज्म सिटीजन इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। अमेरिका से बैठ के और जबलपुर की बात कर सकते हैं, जबलपुर में बैठ के आप मुझे बता सकते हैं। तो ये ग्लोबल एक दुनिया, एक ग्लोबल विलेज। रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ एजुकेटर, उसका भी रोल डिसाइड होगा। टीचिंग लाइफ स्किल्स नीडेड फॉर द फ्यूचर, बहुत सारी चीजें, अपना भारत की बहुत सारी चीजें, नमस्ते, हाथ जोड़ के सलाम करने वाली बात, हाथ गले मिलने और हाथ मिलाने वाली, हाथ धोने वाली, ये सारी चीजें, भोजन के पहले हाथ धोना, जूते बाहर उतारना, ये सारी चीजें, हमारे तुलसी की पूजा करना, ये जो हमारी चीजें हैं वो आदमी वर्ल्ड देख रहा है। अनलॉकिंग टेक्नोलॉजी टू डिलीवर एजुकेशन, ये जो रेफरेंसेस हैं ये बहुत सारी जगह से लिए हैं, आप चाहे तो इसको क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपना नॉलेज तो होता है, लेकिन कुछ चीजें आपको लेना है तो वो उनका रेफरेंस आपको बताना होता है। Thanks to all for listening me. Any question please, or you can contact me through email or WhatsApp number. Is there any question please? Hello. 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 Yes. Hello. Yes. Yes. Sir, are you hearing me? Yes. Yes. Question answer session will be started. You have any query? Please ask. अगर किसी को प्रश्न पूछना है या तो टाइप कर दे, उसमें टाइप कर दे तो आप पढ़ दीजिएगा। हेलो, आप इस पे चैट में टाइप करवा लीजिए क्वेश्चन अगर है। किसी अगर के आप- मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो वो चैट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकता है। अपना प्रश्न रखिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करिए। सर आपके लिए वेट कर रहे हैं। त्रिपाठी मैडम जी को बहुत बहुत बधाई दिया है इसने। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव वेरी एंड वेरी इफेक्टिव इन्फॉर्मेटिव कोऑपरेशन। सर बहुत आपने हमको कोऑपरेट किया सर, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ रेगुलर टीचर? देखिए टीचर तो टीचर ही रहेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण अपन लेते हैं कि मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ होती है, लेकिन जो केमिस्ट है वो अपनी मर्जी से दवाई नहीं ले सकता, उसको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। और सारी बीमारियों का उसके डायग्नोसिस और उनके जो सिम्टम्स हैं वो गूगल पे हैं, लेकिन हम फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? तो टीचर का इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं होगा, ये आप मान के चलें। हेलो, यस हेलो यस सर, one question someone asked, how can we operate LMS
LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स आते हैं और इसके आप मुझे मेल कर दीजिएगा तो मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ उसको, क्योंकि फिर से उसको दोबारा देना बहुत लंबा है प्रोसीजर। तो वो अपन कर सकते हैं। उसके सिंपल सॉफ्टवेयर हैं। उसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो स्टूडेंट है उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होना चाहिए, और उसके जैसे MST लिया आपने, PUT लिया या फिर कोई टेस्ट लिया, उसका पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड रहेगा और उसके अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहेगा। तो ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है जो स्टूडेंट का और टीचर का भी रहेगा कि उसने कौन सी यूनिट कब डिलीवर की थी और कितने स्टूडेंट थे और कौन कौन से स्टूडेंट उसकी क्लास में गायब रहते हैं, ये भी पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें उससे कर सकते हैं। आजकल सारे सॉफ्टवेयर रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को और डिटेल चाहिए तो हम आपको दे दें। सर एक और क्वेश्चन आया है, जी हाउ कैन वी इंटरेक्ट दोज स्टूडेंट हु डज नॉट वांट टू लर्न आफ्टर ट्राइंग सो मच। एक सेकंड, मेरा ये डिजिटल हो गया है, हेडफोन गया। एक सेकंड, मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। सर ऑडिबल, ये आर यू हियरिंग मी? यस यस, इसने लिखा हुआ है क्या कहीं पे? हाँ यस सर, चैट बॉक्स में टाइप किया हुआ है, हाउ कैन वी इंटरेक्ट दोज स्टूडेंट हु डज नॉट वांट टू लर्न आफ्टर ट्राइंग सो मच। अच्छा अच्छा, मतलब इसको, इसके लिए तो अपने को अपना झांकना पड़ेगा। जी उसके लिए कि मेरे में क्या कमी है। हम क्या होता है कि जनरली क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये खराब है तो वो खराब है, उसका मतलब 3 उंगलियां अपनी तरफ है, तो उससे 3 गुना खराब हम हैं। हम में कोई ऐसी चीज है जो हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपने देखा है कि कोचिंग में क्यों जाता है बच्चा, हजारों रुपए की फीस देता है, कोचिंग में जाता है, IIT में जाना है, NIT में जाना है, और वही टीचर जो क्लास में पढ़ाते हैं वो वहां पढ़ाते हैं, लेकिन अप्रोच अलग हो जाती है। तो हमको साइंटिफिक तरीके से, मैनेजमेंट के तरीके से और मॉडर्न तरीके से, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, प्रिंसिपल होने के बाद भी मैं क्लास लेता हूँ और उनको, बच्चों को मैं मोबाइल अलाउ करता हूँ। आप मोबाइल अलाउ नहीं करेंगे तो भी वो मोबाइल चलाएंगे और चैटिंग करेंगे। मैं उनका टास्क देता हूँ कि ये वर्ड ढूंढ के बताओ, कौन जल्दी बताएगा, और उस वर्ड की डेफिनेशन क्या है वो बताओ। तो एक कंपटीशन हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी से लर्निंग, उनको क्लास में मजा आता है। कई बार फेसबुक पे बोलते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, फेसबुक पे ये टॉपिक पे किसने क्या लिखा है, या ये ग्रुप कौन सा है, ये कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ग्रुप कौन सा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ग्रुप कौन से। इस तरीके से उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो खेल हो जाता है उनके लिए। तो खेल खेल में अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे आपकी क्लास में आएंगे। आप, बच्चे डांटने से नहीं घबराते हैं, आपको मारने से भी नहीं घबराते। घबराते बच्चे कब हैं, जब आप काम चोरी करते हैं। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बच्चे की समस्या को समझ के, जैसे हमने बताया नटूरे और फुटूरे, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि नटूरे क्या बोल रहा है वो, तो आप क्या बताएंगे उसको? तो आपको पहले उसको समझना पड़ेगा कि वो, उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसके जूते में पैर रख के आपको देखना पड़ेगा कि कील कहाँ छुप रही है। आप बोलेंगे मेरा जूता तो सही है भैया, तू तेरी जान, तो वो नहीं होगा। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उसको उस लेवल पे लाना पड़ेगा। जैसा हमने बताया कि ये गैप है आपका, अगर उस गैप को मेंटेन करेंगे तो बच्चा दूर भागेगा आपसे। तो बच्चा जितना जानता है उस लेवल पे आप जाके उसको धीरे धीरे उठाना है। very nicely you have explained sir, very nicely और बताएं, और कुछ sir. क्वेश्चन? So we should change ourselves, we should change our self and our style of teaching so we can interact our students. Hello.
हेलो, यस यस मैम। एक और प्रश्न है सर, एक और प्रश्न है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऐसी अप्रोच जिसमें ये पता लगाना है कि जो वो जानता है वो क्यों जानता है। जैसे आप किसी बच्चे को बोलेंगे कि फिल्म के बारे में जानते हो, तो वो बोलेगा नहीं सर मैं तो देखता ही नहीं फिल्म। तो आप उसको अगर फिल्म का एग्जाम्पल देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। अगर आपने किसी कोई दूसरे धर्म का बच्चा है और उसको एक दूसरी धर्म के किताब के बारे में कुछ बताया तो वो नहीं समझ पाएगा। तो वो क्यों जानता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड क्या है वो आपको समझना पड़ेगा कि आप उसको रिलेट कर सकें। जैसे अपने जो ये ज्ञान तंतु है वो पहले खड़े करना पड़ेंगे, तो वो एंटीना का काम करेंगे और वो एंटीना को खींचेगा, नॉलेज को खींचता है। तो जब तक आप अपना तादाद में उसके साथ स्थापित नहीं करते हैं तब तक वो अप्रोच संभव नहीं हो पाए। और बताएं। No question, sir. No question. Thank you so much, sir. You have explained each and everything very nicely. You said about the learning process. Teacher should be responsible for each and everything about the learning process. So we should change ourselves so we can improve teaching style and we can get the aim of education. Thank you so much, sir. I request to Jaya ma'am, please give vote of thanks. Thank you, sir. Thank you so much. So nicely you have explained the importance of the teacher by giving the very nice example. You have given the importance of teacher as the teacher is sharing the knowledge. He should always help the students. There are some of the skills. Important skill is communication within the teacher. So he can easily explain the things to the students. And what the teacher is going to be explained, it has to be understandable for all the students. Thank you, sir. So nicely you have explained. And always we are thankful to you. Whenever we need, we will continue you, sir. And we will have your privileges, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू, थैंक यू। अभी मुझे एक मैसेज मिला है रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, वो लोग भी देख रहे हैं इसको। तो उन्होंने बताया कि आपके जो ये रिसर्च पेपर आएंगे वो चैप्टर बुक के रूप में वो लोग पब्लिश करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MHRD के ISBN नंबर के साथ पब्लिश होगा। ये आज ही उन्होंने अप्लाई कर दिया है उसके लिए, और अपने को हितकारिणी के साथ मिलके एक बुक पब्लिश होगी जिसमें आपके यहाँ के कुछ मेंबर्स रहेंगे, जो जितने भी ये एक्टिविटी हुई है और जो पेपर्स आपके पास आए हैं वो सारे एक बुक फॉर्म में आएंगे, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि ये हमने, आप किसी को बता सकते हैं कि ये, उसमें फोटोग्राफ भी आप दे सकते हैं और अपने जो रिसर्च पेपर है उसके एब्स्ट्रैक्ट उसमें रहेंगे, प्रोसीडिंग बनेगा पूरा, और आप डिटेल बुक चैप्टर भी कर सकते हैं क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है। तो ये टॉपिक किसी के लिए यूजफुल होगा। वो MHRD गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में उन्होंने अप्लाई कर दिया उसके लिए, और आज आपको को मिल जाएगा शाम तक उसका ISBN नंबर। थैंक यू बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपने हमारा इतनी सहजता के साथ आमंत्रण स्वीकार किया सर। थैंक यू। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपने हमको एक्सप्लेन किया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में, इतना डीपली नॉलेज प्रदान किया, और ये कहा कि एक शिक्षक को जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है, और वो जिज्ञासु होगा तभी जो है नई नई चीजों के बारे में जानकारियां एकत्रित कर पाएगा और प्रगति की राह पर चल पाएगा। तो सर थैंक यू सो मच। और आपने जो एक और बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें जो है अपना खाली दिमाग नहीं रखना है, हमें अपना खुला दिमाग रखना है, और खुला दिमाग जब रहेगा सर तो उसमें हम नए नए इनोवेटिव आइडियाज को लेकर अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इफेक्टिव बना पाएंगे सर। जो भी आइडियाज आपने दिए हैं, जो भी सजेशंस दिए हैं,
जो भी टेक्निक्स आपने बताई है बहुत फ्रूटफुल है सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन पूरे हितकारिणी फैमिली की तरफ से। हम सभी को आपको बिल्कुल। अपने परिवार की तरफ से, हितकारिणी सभा की बिल्कुल, तरफ से बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं सर। आपको और जब भी जरूरत हो आप बुला सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर एक मिनट। हाँ जी। Hello. आफ्टर 10 minutes you will join again ओके 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 next session sir. ओके, नो इशू। New meeting I will share you. ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you so much sir. थैंक यू नमस्कार। Thank you, sir. Thank you. Namaste. नमस्ते। It is notice for all the participants. This is the break for 10 minutes. After 10 minutes, we will send you the new link. Then you join. We are having this